بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کہ ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ چونکہ ہر انسان دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہاں نہریں تھی، باغات تھے، دریائے تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ تو مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر ایک دو تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک لوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کے مدد کرتے، مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں ایک دو مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پریشان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بڑے انسان نے اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر یہ دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیح نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیح بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی کھڑا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بڑے انسان کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا، بڑی شان سے وہ سور کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو وہ اس سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے، جب انہوں نے اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو فوری طور پر اس کو گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم کو بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے۔ یہ بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا، کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خود ہی اتنا بڑا عمل تھا مگر اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حاکم ہونے کے باوجود زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے باہر پہنچ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا، یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی، لیکن تم ہو کون؟ فقیر نے کہا کہ میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے جب فقیر کی یہ حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے
मोटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब लग रहे थे। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के मायनात तबीब हकीम बुलाए गए। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, मालकिन, बाहर एक गरीब आया है। हुलिये से फकीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है, इसको निकाल कर फेंक दूंगा। पंडित की बेटी कहने लगी, ठीक है, इसको अंदर बुलाओ। जब फकीर इस घर में आया तो देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो दरवेश पंडित के पैर की जानिब आया जहाँ सांप ने काटा था। इस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहाँ से भाग गया। पंडित के सारे साथी और इसकी बेटी हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था। ये कमरे में आया और इस जगह पर थूक कर भाग गया जिस जगह सांप ने काटा था, और तो और इसको कोई पकड़ भी ना सका। इसकी बेटी गुस्से में आ गई। इसने कहा, ये तो बेअदबी है, उसने गुस्ताही की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी इसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही इसके थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर से नीली हुई टांग से थूक साफ करने लगा तो वो हैरान होते हुए रुक गया। इसने उंगली से थूक को सांप के ढसे पर अच्छी तरह मल दिया तो इसकी बेटी कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? इस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप इस थूक को मल रहे हैं। इसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा कि रुको एक मिनट। जैसे ही इस थूक को पंडित की टांग पर मला गया, जहर का असर फौरी तौर पर खत्म हो गया। वो टांग जो कटने के काबिल थी वो अब पहली हालत पर आ गई थी। पूरी टांग जो अब नीली हो चुकी थी अब वो असल रंग पर आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित खुश में आने लगा। जैसे ही पंडित खुशी में आया तो इसे फकीर के थूक के किस्से का पता चला। इसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है। तुम लोगों ने इसे दीवाना कहा, इसको बेइज्जत किया। वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ, इसे लेकर आओ। इसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम इसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर इसके सारे दरबारी इसी वक्त इस फकीर को ढूंढने निकले। चारों तरफ फैल गए, कहीं भी इस दरवेश को ना देखा। फिर जब जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से इस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। पंडित का हुक्म था तो फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताही की माफी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बड़ा सुलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैं आपसे माजूरत चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से कीमती पोशाक यानी लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। फकीर ने मुस्कुरा कर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती हैं। मैं ये लिबास पहनकर मैं घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये घोड़े के साथ साथ हुदूद गुजार भी दे जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतना माल और दौलत और मुलाजिमों के साथ मैं अपनी रिहाइशगाह में क्या अकेला रहूंगा? पंडित बोला, हुजूर आप परेशान ना हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। इसने कहा, मेरी बेटी जिसको आपने अभी देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी और एक शर्त है कि आपको जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ
इसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे हासिल मुलाजिमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं। हम अपनी इन मूर्तियों की इबादत करते हैं और जिसको आप सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब है कि इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ले लें, अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फकीर ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, क्या आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हो, कि आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। मुझे बताइए कि अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुरा कर बोले, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना घोड़ा और ये कीमती लिबास, बेटी और ये आलीशान घर अपने पास ही रखें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नियामतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है तो क्या इस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए, दुनिया की चीजों के लिए? मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और ये सब नियामतें तो मुझे वहाँ मिल जाएंगी। इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित ने कहा, क्या मकसद है आपका? फकीर ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, बस इन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पंडित ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगा कि मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। फकीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया है, इसको कहो कि मुझे जानवर बना के दिखाए तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले के पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि जाओ बेटी इस पर वार करो। अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी तो वो इसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने इंसान खड़े थे इन सब से ऊंचा कद इसका था। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलाना ही चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। इसी वक्त इन्होंने इसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? तेजाब था, जिससे इसका आधा चेहरा जल गया। इसका चेहरा जलकर काला हो गया। करीब था कि पूरा जिस्म जलकर खत्म हो जाए और पंडित भागता हुआ आया और इनके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत इस गुस्ताही के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत कमजोर समझा और आपको आपके मजहब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फकीर ने कहा कि हम किसी को जबरदस्ती अपने दिन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो हम इस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। हमारे दिन में जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूँगा। पंडित कहने लगा, हाँ मेरी बेटी अपनी असल हालत में आ गई तो वो किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं इसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ। जो कुछ मेरी बेटी ने आपके साथ किया है आइंदा ये कोई काला जादू और कोई भी ऐसा गंदा अमल नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर कोई सख्ती नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने इस छिपकली
पर फूंक मारी तो वो इंसान बन गई। फकीर के कदमों से लिपट गई और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमजोर समझा। आप जब तक यहाँ रहे आप मेरे लिए एक फकीर इंसान थे। अपने लिबास और हुलिये से मुझे एक दीवाना फकीर लग रहे थे। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी जान की दुश्मन बन गई और मैं चाहती थी कि मैं आपसे बदला लूं, मगर मुझे तो खुद अज़ाब मिल गया। वो कहने लगी कि आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्त मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ और आइंदा इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान को सताऊंगी नहीं, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई बहन बन कर रहेंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। तो यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर एक पंडित और इसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और इस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गुरूर करते थे आज वो लोग अच्छे बन गए थे, एक अल्लाह वाले के करम से। नाजरीन, आज का वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकयात, सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।